Worksheet 5, question number 1 is find the circumference of a circle whose radius is 7 centimeter. Okay. Circumference is asked and radius is given to us. What is the formula for finding the circumference of a circle? The formula is circumference of a circle is equal to 2 pi r, and the value of pi is, what is the value of pi? Value of pi is equal to 22 by 7. 22 by 7. Value of pi is 22 by 7. Okay. Let us put all the values into 7. So 7 and 7 got cancels out, and here it is 44 centimeter. Therefore, the circumference of the circle with the radius 7 centimeter is 44 centimeter. Okay. Find the diameter of a circle. Here the diameter is asked. The question is find the diameter of a circle whose circumference is 66. Okay. What will you do? Let us first of all write down the formula for circumference. Circumference of a circle is equals to 2 pi r. Okay. Circumference दिया हुआ 66, 2 और ये पाई की वैल्यू है 22 by 7. ये हम जानते हैं. आर हमें नहीं पता, आर हम कैलकुलेट करेंगे. आर इज इक्वल्स टू व्हाट विल हैपन 62 इंटू 7, और ये न्यूमरेटर वाले सारे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, है ना. चलो चले गए. अब देखो आर क्या आता है. 22 3 सा 3 7 सा 21 by 2. 21 by 2 is how much? 10.5 सेंटीमीटर आर. अगर आर 10.5 है, देन व्हाट विल बी डायमीटर? डायमीटर डी इज 2r. हाउ इज इट? सपोज दिस इज अ सर्कल विथ रेडियस r. ये रेडियस r है, तो ये डायमीटर, अगर हम इसको पूरा, डायमीटर क्या होता है? जो सर्कल को हाफ डिवाइड करता है इन 2 पार्ट्स, है ना. ये डायमीटर है. सो डायमीटर इज 2r. तो डायमीटर इज 2r. 2 multiplied by 10.5. What will you get? 21 centimeter. 21 centimeter. Yes. Okay. The next question is, if the circumference of a circle, find the radius. अभी जो हमने किया था same, we have to same thing, same procedure. Okay. The question is, यहाँ पर diameter पूछ रहा था, यहाँ radius हमें पूछा हुआ है. यहाँ पर हमें diameter कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Let us find the circumference. Circle is 2 pi r. 2 into 22 by 7 into r हमें पता नहीं है. Circumference is 176 centimeter. Okay. So r is equals to 176 into 7, और ये न्यूमरेटर वाली चीज़ें डिनोमिनेटर में चली गई. ये करिए 8 times. 2 1s are 2 4s are 4 7s are 21 centimeter. Radius, therefore radius is equals to 21 centimeter. Question 4 is, the diameter of a wheel is 1.4 meter. Find its circumference. Okay. Diameter is given as 1.4. Radius will be what? Radius is d upon 2. Diameter का हाफ होता है ना radius. So 14.1 meter. Sorry, ये गलत तरीका. यहाँ पर होना चाहिए डेसिमल. डिवाइडेड बाय 2. उसको हम डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा? 0.7 मीटर. Now let us find out the circumference. Of a circle is equals to 2 pi r.
Now substitute all the values. What are you going to get? बताओ क्या मिलेगा यहाँ पर, डिवाइड करोगे तो 0.7 divided by 7 will give you what? 0.1 होगा ना, 0.1. So 2 into 22 into 0.1, ये 0.1. ये 44 multiplied by 0.1 will give you what? 44 multiplied by, देखो ना 44 हो जाता नहीं, ये 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये 44 ही होगा. और ये 1 नंबर के पहले डेसिमल है, सो जस्ट बिफोर 1 नंबर, सो इट गिव्स यू 4.4 सेंटीमीटर. गॉट इट? दिस आर वेरी इजी कैलकुलेशन. इसके कैलकुलेशन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एंड क्विकली हमें ये सारा कैलकुलेशन कर लेना है टू सेव द टाइम. द रेडियस, अभी क्योंकि हमारा यूनिट टेस्ट का टाइम चल रहा है ना, ये तो यूनिट टेस्ट का फेज चल रहा है, अभी यूनिट 4 होने वाला है बच्चों का. द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस. 2 सर्कल का है रेडियस, तो इसलिए रेडियाई. ठीक है. द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो दिस. रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो. क्या है रेशियो? रेशियो ऑफ रेडियाई इज इक्वल्स टू r1 by r2. लेट करते हैं. इज दिस. व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस? तो रेशियो ऑफ circumference is equals to 2 pi r1 upon 2 pi r2, है ना. ये 2 pi सेम है, दोनों कट हो गया, क्या बचा? क्या बचा? r1 upon r2. और r1 upon r2 क्या है हमारे पास? r1 upon r2 is 2/3. therefore the ratio is equals to 2:3. Same thing. Now see question number 6. The moon is nearly 3,85,000 kilometers away from the earth. It takes a round of the earth every month. How much distance does it travel? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हमें बताया ऐसे जाता है ना कि हम डर जाते हैं. ये आपका अर्थ है और ये मून है, और अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है ना, वो आपको दिया हुआ है 3,85,000 किलोमीटर. ओके. और ये मून का क्या काम है? ये अर्थ के अराउंड घूमता है 1 महीने में. कितने में? 1 महीने में. यानी ये क्या है? ये जो पाथ को कवर कर रहा है, सर्कुलर पाथ को, ये क्या है? इसका सर्कमफरेंस है. बस सर्कमफरेंस ही तो निकालना है. यहाँ हमें ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 pi r. और r क्या है? r इज 3,85,000 किलोमीटर. 2 into 22/7 into 385,000, है ना, यही है. ठीक है. इसको 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 22 into 55000, है ना. अच्छा, now let's multiply all this. Multiply it with 44. You will get the circumference as 400 किलोमीटर, है ना. ये किलोमीटर में है. देखिए कितना मिला? 2,420,000 किलोमीटर.
24,20,000। अगर हम इंडियन नंबर ऑफ सिस्टम्स में देखेंगे तो ये होगा 24,20,000। क्वेश्चन नंबर 7 इज द डायमीटर ऑफ द wheel of a car is 35 centimeter. How much distance will it cover in 1000 revolution? एक revolution मतलब circumference, तो जो हमें circumference मिलेगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 1000 revolution में वो कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू d by 2 is equals to 35 by 2 will be how much? Tell me. 17.5 what centimeter? Okay, so what is the circumference? Circle is equals to 2 pi r। वही एक ही फॉर्मूला हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 17.5 कितना हो रहा है? 17.5 हो रहा है। 17.5 2 इंटू 22 इंटू डिवाइड करो इसको, दिस कम्स एज 2.5। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दिस विथ 44। 44 इंटू 2.5 विल गिव यू 1110 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो 1 रेवोल्यूशन हुआ। Circumference of a circle is equals to wheel is equals to 1 revolution. Therefore 1000 revolutions is equals to, what will you do? Multiply it with 1000 into 110 centimeter will give you what? मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 1 2 3 4 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये रेवोल्यूशन है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? 1100 मीटर, है ना। अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहो, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इतना मीटर कर रहा है। गॉट इट? Now let's move to the next question. Question number 8. The radius of a wheel of a bus, ये देखो वही चीज़ है। यहाँ हमें रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा पूछा था, यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया हुआ रेवोल्यूशन पूछा है। सेम थिंग, वही एक ही बात है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। रेडियस इज गिवन टू अस, वहाँ पर हमें डायमीटर दिया था, यहाँ रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस इज इक्वल्स टू 0.07 मीटर। लिखो यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ अ व्हील, यानी कि सर्कल। Therefore circumference of a circle is equals to 2 pi r, 2 into 22/7 into 0.70, तो 0.70 when you will divide it with 7, what are you going to get? 0.1. Now let us multiply it, तो ये 44 इंटू 0.1 विल गिव यू 4.4 सेंटीमीटर। इतना हो रहा है ना। और आपको क्या पूछा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू total distance and upon distance covered in
1 revolution, है ना, 1 revolution, that is equal to 22 kilometer upon 4.4 meter, sorry, 4.4 meter. ड्यू टू सम प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग इसका हो नहीं पाया था. अगेन आई एम अपलोडिंग. सी 22 किलोमीटर अपॉन 4.4 मीटर, इसका कैलकुलेशन यहाँ पर है. 22 किलोमीटर को हम मीटर में कैसे लिखेंगे, 22,000 मीटर. तो 22,000 मीटर अपॉन 4.4 मीटर, जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट एज 5,000. सो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज 5,000. 5,000 रेवोल्यूशंस कवर्ड. ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 8. Now let us see question number 9. A wire is in the form of a circle with a radius 42 सेंटीमीटर. एक वायर है जिसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर का, एक सर्कल बना हुआ है. वायर जो है वो सर्कल फॉर्म में है और उसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर. अगर उस वायर को हम सर्कल से स्क्वायर की शेप में ले आए, लेंथ तो वही है, वायर का जो लेंथ है वो तो सेम है, लेंथ सेम है, यानी कि पहले वो सरकमफ्रेंस था, है ना, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री जो सर्कल का होता है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं. पहले वो सरकमफ्रेंस था, अब वो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बन गया. लेंथ बिल्कुल वही है, सेम, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बन गया है. हमें साइड फाइंड करने के लिए कहा है. साइड निकालो. क्या साइड है, पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं इसके लिए. Question number 10 is, the diameter of a circular path is 140 meter. Around it, on the outside, a path having the width of 7 meter is constructed. If the path has to be fenced from inside and outside at the rate, find the total cost. Okay. This question is like, there is a circular path. एक पार्क है सर्कुलर फॉर्म में, बहुत से ऐसे पार्क होते हैं जो सर्कल में रहते हैं ना. और क्या है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 140 मीटर. एंड अराउंड इट टू द आउटसाइड अ पाथ हैविंग अ विड्थ ऑफ 7 मीटर. एक रास्ता बना हुआ है, कितना, 7 मीटर का, 7 मीटर.
ठीक है, यहाँ भी फेंस करना है और यहाँ भी फेंस करना है। तो टोटल कॉस्ट पूछा है, देखो टोटल कॉस्ट पूछा तो हम क्या करेंगे, पहले इसका रेडियस निकालेंगे, छोटे वाले का 2 से डिवाइड करोगे रेडियस मिलेगा, और उसमें ये 7 मीटर अगर हम जोड़ दें उस रेडियस में तो ये बड़े वाले का रेडियस हो गया, छोटे वाले का रेडियस और ये विड्थ, तो ये बड़े वाले का रेडियस मिल जाएगा हमें। तो इसका भी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, और दोनों का सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना होगा कि फेंसिंग के लिए कितना कॉस्ट पड़ रहा है 7 रुपये के हिसाब से, और दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्या होने वाला है। डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर that is D is equals to 140 meter. Therefore, radius R is equals to D upon 2, 140 meter upon 2, that is equal to how much? That is equal to 70 मीटर, है ना, 70 मीटर आ गया। चलो ठीक है, अब 70 मीटर आ गया किसका, रेडियस इनर सर्कल का, है ना, ये रेडियस ऑफ अ इनर सर्कल है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट सर्कमफरेंस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अंदर वाला सर्कल है, छोटा सर्कल है तो छोटा आर हमने लिया हुआ है, 2 पाई आर। हाँ, मल्टीप्लाई करो इसको, 440, ये हो जाएगा ना, ये 10 हो गया, तो 440 सेंटीमीटर आ गया सर्कमफरेंस इनर सर्कल का। अब हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है किसका, स्केल कहाँ रख दी, अच्छा चलो नहीं मिल रहा है। सी सर्कमफ्रेंस इनर सर्कल हमका मिल गया था, अब हमें रेडियस निकालना है आउटर सर्कल। रेडियस, अब इसके लिए हम बड़ा आर यूज़ करेंगे, रेडियस आर ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस विड्थ, है ना, स्मॉल आर प्लस विड्थ, दैट इज 70 मीटर प्लस 7 मीटर, दैट गिव्स यू, अरे सॉरी ये मीटर है, इट्स मीटर, okay, that gives you 77 meter. Now find out circumference of outer circle, that is equals to 2 pi r. तो 2 और ये पाई और r हो गया आपका 77. Now your answer is 44 multiplied by 11, 484 मीटर, 484 मीटर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल्स टू, इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा ₹7 मल्टीप्लाइड बाय 440 इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज़, 7 4s are 28 to carry, 7 4s are 28 to carry 30. Okay, now here cost of fencing, इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालिए, वही 7 रुपये पर मीटर के हिसाब से 484 मीटर का क्या निकलेगा, 7 4s are 28 टू कैरी, 7 8s are 56, 58, 5 कैरी, 7 4s are 28, 33, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल, कैन यू सी द टोटल कॉस्ट नाउ, या टोटल कॉस्ट ऑफ fencing is equals to ₹3080 plus ₹3388. Now you calculate what amount are you getting. चलो खुद भी कैलकुलेट करके देखो कि क्या मिल रहा है आपको. Is this the amount that you are getting? Share your answers in the comment section. Let us see question 11 now. An athlete runs around a circular park 10 times.
इफ द डायमीटर ऑफ पार्क इज 280 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 10 मीटर्स। क्या क्वेश्चन है? एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर पार्क के अराउंड में दौड़ रही है, अराउंड में दौड़ रही है, उसकी बाउंड्री में दौड़ रही है, उसकी बाउंड्री को कवर कर रही है। इसका मतलब कि उसके सरकमफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर। और उसने 10 बार दौड़ा, 10 बार वो दौड़ा। जो एथलीट है वो 10 बार दौड़ रही है, तो एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? पहले तो हम एक सरकमफरेंस निकालेंगे, फिर उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा हमें। तो क्या करना क्या होगा हमें निकालने के लिए? सोल्यूशन लिखो। क्या करना होगा? डायमीटर इज गिवन टू यू, d is given as 280 मीटर, रेडियस निकालो, r इज इक्वल्स टू व्हाट? 140 मीटर। 2 से डिवाइड किया हमने, अब निकालिए सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ये भी लिख सकते हैं आप, सर्कुलर पार्क की बात हो रही है भाई। तो सर्कुलर पार्क इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। ये हो जाएगा 44 इंटू 20 यानी 880 मीटर। व्हाट? ये तो सरकमफ्रेंस निकल गया। हाँ, अब हमें ये बताना है कि एथलीट्स 10 टाइम्स रन करा। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट्स इन किलोमीटर हमें बताना है। पहले तो मीटर में तो हम कैलकुलेट कर लें। What are you doing? Why? Sorry. An athlete runs 10 times. So, distance covered is equals to 880 meter into 10 times. That will give you 8,800 meter. 8,800 meter. But distance covered हमें क्या करना है? Distance covered in kilometer is equals to what? इसको 1000 से आप डिवाइड करो। हाँ, किलोमीटर में करने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। 8,800 मीटर डिवाइडेड बाय 1000, दैट विल गिव यू 8.8 मीटर। एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 8.8 सॉरी मैं भी क्या, किलोमीटर, किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 8.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया एथलीट ने। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है। इसमें 12 लिखा होना चाहिए था। दिस इज 12 ना, पीछे वाला क्वेश्चन 9 था। ठीक है 12, ठीक है। इट इज 12, नंबर 12। अ सर्कुलर पीस ऑफ थिन वायर इज कन्वर्टेड। सी क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने यही चीज़ देखी। क्या चीज़ देखी? कि जो वायर है वो सर्कुलर फॉर्म में है, फिर उसको बेंड किया जा रहा है स्क्वायर में। अब यहाँ पर क्या कहा गया? अ सर्कुलर पीस ऑफ थिन वायर इज कन्वर्टेड इनटू अ रोम्बस। अब ये रोम्बस में हो गया, वो स्क्वायर था। स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं। यहाँ पर रोम्बस का साइड दिया हुआ है, क्या दिया है? रोम्बस का साइड दिया। वहाँ पर क्या हमें स्क्वायर का साइड पूछा था और डायमीटर दिया हुआ था। यहाँ पर आपको रोम्बस का साइड दिया है, डायमीटर पूछा है। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में, कोई भी चेंज नहीं है। सेम क्वेश्चन, जो पूछा था वो दे दिया है, जो दिया था उसको पूछा है। चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
लिख लो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो हमें कंडीशन बताई जा रही है उसके हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन circumference of circle is equal to what, is equal to क्या कहते हैं उसको, पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, अच्छा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, 4 इंटू साइड दैट गिव्स यू 4 इंटू 11 सेंटीमीटर दैट इज 44 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल आपको मिल गया 44। हाँ, तो सर्कमफरेंस व्हाट नो इज 2 पाई आर, ये आपको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस हमें पता नहीं, हम रेडियस फाइंड करेंगे, है ना। तो रेडियस हमें कितना मिल जाएगा, 44 सेंटीमीटर, या सिर्फ 44 ही लिखिए तो भी कोई हर्ज नहीं है। 2 इंटू 22, ये कट गया, बचा कितना, 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज, once I said no means no, go to Dadi and come within 2 minutes, I'm waiting for you. Okay, diameter D is equals to, actually my son is disturbing, I'm very sorry for that. Diameter D is equals to twice the radius, है ना। So 2 into 7 centimeter that is 14 centimeter. Find the diameter of the circular piece. तो आप लिखोगे 10, the diameter of circular piece is equals to 14 centimeter. See, question 13 is very interesting. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेस ट्रैक है जो कि रिंग के फॉर्म में है ना। रेस ट्रैक कैसा है, रिंग के फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में है यानी कि इस तरह से है, ये रेस ट्रैक है, ये वाला ये रेस ट्रैक है रिंग के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, और इसका जो इनर सरकमफरेंस है ना, वो इनर सरकमफरेंस दिया हुआ 352 मीटर, और आउटर सरकमफरेंस आपको दिया हुआ 396 मीटर, और पूछा है कि इसकी चौड़ाई क्या है। चौड़ाई क्या होगी, अभी तो हमने किया था, क्या होगी चौड़ाई, इससे आपको निकालना होगा, जो सरकमफरेंस दिया उससे इसका रेडियस निकालिए, और जो बड़े वाले सर्कल का जो सरकमफरेंस दिया उससे हमें मिल जाएगा कैपिटल आर, और कैपिटल आर, ये पूरे कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर को हम माइनस कर देंगे तो उसकी विड्थ मिल जाएगी ना, विड्थ मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सरकमफरेंस इनर सर्कल, तो इनर सर्कल ही पहले करते हैं, है ना। ऑफ इनर सर्कल is equals to 2 pi small r, that gives you 2 into 22 to r। सर्कमफरेंस कितना दिया हुआ था, 352, तो r हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 352 r इंटू 7/2 इंटू 22। चलिए इसको काट के देखिए, इसको आप कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56, r इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका सरकमफरेंस हो गया इनर सर्कल का। अब हमें देखना है सरकमफरेंस आउटर सर्कल का। कादरी, वेयर इज माई स्केल,
यू डोंट नो। सर्कमफरेंस ऑफ आउटर सर्कल, है ना। अब आउटर सर्कल का भी तो हमें कैलकुलेट करना है, आर, कैपिटल आर ले लेते हैं। तो सर्कमफरेंस तो इसका हमें दिया हुआ कितना 396 है ना। ओके 396 है। पाई की वैल्यू हमें पता है, आर हमें मालूम नहीं है, आर को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। 396 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 will give you 63 centimeter. Okay. Width of the track is equals to capital R minus small r, that is 63 meter. 63 meter minus 56 meter is equal to, what is that, 7 मीटर। 7 मीटर हमारा इसका आंसर आ रहा है। विड्थ ऑफ द ट्रैक आपको मिल रहा है 7 मीटर। अब हम बढ़ रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 63 मीटर, नहीं 63 सेंटीमीटर है यहाँ पर। हाँ, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप विच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन को एनसर्कल करने के लिए तो उसका सर्कमफरेंस ही है। यहाँ पर भी बात सर्कमफरेंस की ही हो रही है। देखिए क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक पे हमने 14 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन हर जगह आपको कुछ अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से आपको पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इनको थोड़ा दिमाग में बैठा करके रखना है कि कब कब कौन कौन सी कंडीशन देता है हमें, कौन कौन सी सिचुएशन हमें बताता है जहाँ हमें सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल वी हैव टू अप्लाई। जहाँ पर मतलब बात हो रही है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल की, क्या है ये लेंथ ऑफ रोप विच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कुलर रीजन, तो सर्कमफरेंस की बात हो रही है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है विड्थ ऑफ द ट्रैक ऑफ सर्कुलर रिंग, रेस ट्रैक दिया हुआ है, सर्कुलर रिंग दी हुई है, तो यहाँ पर भी वही सर्कमफरेंस की बात हो रही है। तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं, है ना। रेडियस हमें दिया हुआ है, लिखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लीस्ट लेंथ ऑफ rope is equals to circumference of circle of circular region। ठीक है। अच्छा, circumference of circular region क्या होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r में आप वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, काटो इसको, और मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपको 9 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 9 सेंटीमीटर। सो व्हाट यू विल राइट 10, ये हमारा लास्ट आंसर है। 10 लीस्ट लेंथ ऑफ रोप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें बताएं भी कमेंट करके कि हाँ हमें पसंद आया वीडियो, हमें अच्छा लग रहा है, आप जो सिखा रहे हैं वो हमें समझ आ रहा है। या कोई ऐसी टॉपिक है, एक मुझे कमेंट आया है एक बच्चे का, मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखकर कि बच्चे ने कहा है कि मैम वर्कशीट 2, 3, 4, 5, 6 और ब्रेन टीजर सारा करवा दीजिए, हमारा 24 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, वो भी कौन सा यूनिट 4। तो यूनिट 4 का तो टाइम हो ही गया सारे स्कूल्स में। यूनिट 4 के लिए ऑल द बेस्ट टू यू। बाय बाय।